Let's start with input tax credit. Peter Lal has obtained registration. Peter Lal has obtained registration in the current financial year in Uttar Pradesh. He is registered in UP. Am I clear? Hi Gaurav. His turnover in the preceding financial year is 19,90,000. Preceding financial year का turnover कितना है? 1990. He has received the following amount in respect of the activities undertaken by him in the month of September. मतलब सारी activities जो की है, he has received the following amount, as in he has given the services or maybe supply of services, maybe supply of goods, and accordingly he has received amount. Funeral services 8,80,000 received किया है. Warehousing of Jaggery 50,000 rupees. Electrically operated buses given hire to municipal corporation 5 lakhs. Service provided to recognized sports body as commentator 2 lakhs. Commission received as insurance agent from insurance company 65,000. Commission received as business facilitator for service provided to the urban branch of nationalized bank with respect to saving bank account 15,000. Security services, supply of security personnel provided to Damodar Engineering College registered in the GST. All the engineering colleges are recognized by law. Further, he has received following services. He has received the services. मतलब यहाँ तक he was a service supplier and this 2 point में is a service receiver. He has received GTA service, freight paid to URD, unregistered GTA for his business activities written to serial number 1 above. Okay, 1 के लिए उसने GT की सर्विस ली है, इसके लिए पे किया 1 लाख रुपये. Legal services, legal advice received from Mrs. Kanun Associates, a partnership firm seeking advice in relation to a tax dispute of the business. Am I clear? 50,000 rupees. All transactions stated above are intra-state transactions and amount given above are exclusive of GST wherever applicable. You are required to calculate net GST payable by Peter Lal for the month of September. There was no opening balance of input tax credit and rate of CNS are 9% each for outward supplies made by Peter Lal. I hope you people are listening to me. Yeah, I'm all well, all fine. Am I clear? अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन देखा? चलो स्टार्ट करें. Amount is coming blur. No, it is not coming blur. Check it here. मैं YouTube पे चेक कर ही रही हूँ. Gaurav, I am on YouTube. Okay. स्टार्ट करें. Okay. Now funeral services. Tell me, funeral services के ऊपर 8,80,000 की funeral services दी है. या थोड़ा स्लो जाऊंगी, थोड़ा नहीं बहुत स्लो जाऊंगी. Funeral services दी है 8,80,000 रुपीज की. क्या इस पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा? Funeral services दी है 8,80,000 की. क्या इस पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा? रिप्लाई करो. नहीं. Why no? Schedule 3 में it is neither supply of goods nor supply of services. Yes, no GST. It is neither supply of goods nor supply of services. है मैं क्लियर? तो हमेशा पहली बात सी मेरा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करना है. तो पहली बात तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने को बोला है? नेट GST पेबल. तो हमेशा ये लिखो what you have to calculate. Compute net GST payable by Peter Lal for month of September भी ऐड कर सकते हो. Then very important is how do you present the answer. What columns do you make? अगर columns ही आपने सही बना ली ना तो 90% एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. 90% एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. तो उसमें पर्टिकुलर्स एक कॉलम अमाउंट CGST एंड SGST आई इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि सारे सप्लाई इंटरेस्ट सप्लाई है तो मैं आई पे ही नहीं करना है तो आई का कॉलम बना के मतलब ही नहीं है. अब हमेशा ये ध्यान रखना एक चीज कि ये चीज हमेशा ध्यान रखना
कि when you have to pay tax as forward charge and when you have to pay tax as reverse charge, ये दोनों मिला के आपकी लाइबिलिटी होती है. तो प्लीज इसको दिमाग में रख लो कि आपको अगर लगता है कि FCM भी लग रहा है और RCM भी लग रहा है, FCM भी लग रहा है और RCM भी लग रहा है, you please make two separate columns. You please make two separate columns. Getting my point? फ्यूनरल सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विस में अमाउंट लिखा, टैक्स निल है, नोट 1 बोला है. नोट 1 क्या बोलता है? फ्यूनरल सर्विसेज being covered under entry 4, तो you don't have to write entry 4, being covered in schedule 3 of CGST Act is neither supply of goods nor supply of services. बात खत्म? क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन, सर्विसेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ जैगरी. जल्दी बताओ, is jaggery an agriculture produce? Is jaggery an agriculture produce? Yes or no? No. तो क्या warehousing of jaggery पे GST लगेगा? Yes or no? Sugar cane is agriculture produce, right? Sugar cane, but it is exempted separately. But it is exempted separately, right, Shubham? Am I clear? हमने अलग से एग्जामिनेशन की लिस्ट पढ़ी है, warehousing and storage of jaggery, spices. Yes or no? तो ये भी exempted है, राइट. सर्विस में नोट 2 50,000 पे नो टैक्स लगाया हमने, और नोट 2 हमने क्या लिखा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयरहाउसिंग ऑफ जैगरी इज एग्जम्प्टेड. जस्ट राइट नोटिफिकेशन नंबर, just write notification number. Getting my point or not? Am I clear? Notification number 12/17. Why 12/17? क्योंकि इंट्रा का it is 12/17 और इंटर का it is 9/17. Am I clear? Yes. या ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्केड्यूल 3 लिख के आ रहे हो. सबको मालूम है एग्जाम्प्ट है, सबको मालूम है सर्विस GST नहीं लगेगा, पर रीजन दो. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, electrically operated bus given on hire to municipal corporation. Correct. Electrically operated bus given on hire to municipal corporation. कोई पॉइंट याद आ रहा है कि मैं बताऊं कहां पे क्या पढ़ा है अपन ने? कोई पॉइंट याद आ रहा है कि मुझे बताओ कि मैं बताऊं मैंने क्या पढ़ाना है यहाँ पे? अगर मैंने बस हायर पे दिया है, am I clear? तो उस केस में मैं क्या करूंगी? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बस अगर मैंने हायर पे दिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे दिया है, तो याद आ रहा है कि मैं बताऊं? ऐसे आंसर दोगे ना, 12 का कुछ पॉइंट है तो मैं बोलूंगी नंबर्स तो कुछ होते हैं. No, section 17. एग्जामिनेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको. 2 सेकेंड दो. ओह, इतनी मेहनत से खोला और बंद हो गया. एंट्री नंबर 22. कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 22. क्या लिखा है? हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स में अगर मैंने लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया है, किसको दिया है? लोकल अथॉरिटी को. और हमारे क्वेश्चन में हमने किसको दिया है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब लोकल अथॉरिटी.
आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेस गिवन ऑन हायर, तो आई एम अज्यूमिंग ओवर योर कि ये 12 पैसेंजर से ज़्यादा है. अगर लोकल अथॉरिटी को दिया है एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल meant to carry more than 12 passengers. Am I clear? Am I clear? तो आप यहाँ लिख के आना, क्योंकि बस है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज मोर देन 12, इट इज मोर देन 12 पीपल, इट इज मोर देन 12 पीपल. एम आई क्लियर? इसलिए एग्जाम कर दिया है, इसलिए 5 लाख एग्जाम करके रखा है. यहाँ पे हमने कोई टैक्स नहीं पे किया है. एम आई क्लियर? नोट 3 देखिए अपन, तो नोट 3 क्या बोलता है? सर्विसेज बाय ऑफ गिविंग ऑन हायर to local authority an electrically operated vehicle meant to carry more than 12 passengers or exam by notification number 12/17. getting my point? तो अगर आप ये सेम नोटिफिकेशन नंबर वापस लिख के आओगे तो कोई इशू नहीं है. एम आई क्लियर? सी त्रिलोचनेश, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उतना आएगा. ऑफ कोर्स यस, पर यार दिस इज अ पेड बैच. ये आज सिर्फ वीकेंड्स पे सैटरडे संडे मैं इसको लाइव करूंगी साथ साथ यूट्यूब के, बट इट इज बेसिकली अ पेड बैच. ओके, कैन आई गो एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बट एज कॉमेंटेटर. एज कॉमेंटेटर अगर मैं सर्विसेज दे रही हूँ, किसके दे रही हूँ? एज कॉमेंटेटर. तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि टैक्स हमें सिंपल प्ले, अगर मैं एज प्लेयर, एज रेफरी, एज अंपायर, एज कोच, एज टीम मैनेजर दूंगी तो इट इज एग्जम्प्टेड. अदर्स के लिए इट इज टैक्सेबल. तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, 9% CGST एंड 9% SGST. 9% CGST, 2 lakhs पे 9%, 18,000 CGST एंड 9% SGST. Am I clear? Next point. Commission receive as an insurance agent. बताओ क्या होगा इस केस में? I have received commission as an insurance agent from an insurance company. What is going to happen over here? I have received commission as an insurance agent from an insurance company. Tell me what is going to happen over here? From 2017 to 2021 fast track important questions given by ICI in practice manual and RTPs, question papers, study material, everything. आंसर करो. इंश्योरेंस एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लगेगा? RCM लगेगा. हमने पढ़ा है इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन लेता है तो उस पर कौन टैक्स पे करेगा? कंपनी. रेसिपिएंट विल पे टैक्स. तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी टू पे टैक्स नहीं आएगी, तो ये मेरे इसमें नहीं आएगा. दिस इज नॉट माई लायबिलिटी, इसलिए मेरे इसमें नहीं आएगा. यहाँ पे क्या लगेगा? RCM लगेगा. एम आई क्लियर? Next, commission received as business facilitator. I have received commission as business facilitator for the services provided to urban branch of a nationalized bank. तो first answer to my question, as a business facilitator, अगर मैं urban branch को services दे रही हूँ of a banking company, तो पहली बात तो ये taxable है या नहीं है. फिर बाद में taxable, क्योंकि exempted is only urban, rural. Exempted is only rural, right? Urban taxable है. अब मुझे बताओ बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में FCM लगता है कि RCM लगता है? करेक्ट? यहाँ पे भी RCM लगेगा, यहाँ पे भी RCM लगेगा. बॉस देखो इस एक चैप्टर में अभी तक हमने ITC का तो कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा देखा ही नहीं. एग्जामिशन और चार्ज ऑफ GST देख रहे हैं, एग्जामिशन एंड चार्ज ऑफ GST देख रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट. तो दिस इज अ वे ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है. तो इसीलिए अब ITC चैप्टर तक आने तक आपका स्टडी मटेरियल 1 पूरा हो चुका है. स्टडी मटेरियल 1 के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं. अब हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम
सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑफ आईटीसी, एक्सेप्ट जब पे आईटीसी की पॉइंट्स है तो वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी सर्विसेज दी है, करेक्ट। बीसी एंड बीएफ मैंने कल ही आप लोगों को डेप में पढ़ाया है। सिक्योरिटी सर्विसेज मैंने दी है, किसको दी है? दामोदर कॉलेज को दी है। अब मुझे बताओ सिक्योरिटी सर्विसेज, पहली बात, इज इट आई एम गिविंग सिक्योरिटी सर्विसेज, राइट? कॉलेज इज टेकिंग सर्विसेज। पहली बात तो सिक्योरिटी सर्विसेज टैक्सेबल है या नहीं है? अब यहां बताओ, यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में आरसीएम लगेगा कि एफसीएम लगेगा? सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में आरसीएम लगेगा कि मुझे प्रोविजन चाहिए। प्रोविजन क्या है सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में? प्रोविजन बताओ मुझे। सप्लायर कौन होना चाहिए? रिसिपेंट कौन होना चाहिए? यस तिलोशनेश, सप्लायर कौन होना चाहिए? रिसिपेंट कौन होना चाहिए? सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर। सी, पहली बात है एग्जम्प्टेड नहीं। एग्जम्प्ट किसको है? सिक्योरिटी सर्विसेज इज एग्जम्प्टेड ओनली टू प्री स्कूल एंड स्कूल, एंड दैट टू अगर सिर्फ सिक्योरिटी स्कूल प्रीमाइसेस को दी गई है तो, राइट? राइट, हाँ या ना? वन थिंग। सेकेंडली, the further the tax on security services supply of security provided by any person other than body corporate to a registered person, बस that's it। सप्लायर कौन होना चाहिए इन केस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज? इन केस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लायर कौन होना चाहिए एंड रिसिपेंट कौन होना चाहिए? सप्लायर कैन बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, any person other than body corporate, और recipient should be a registered person। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पे क्या लगेगा? आरसीएम। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पे क्या लगेगा? आरसीएम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? करेक्ट, am I clear? Any person other than body corporate and recipient should be a registered person। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आरसीएम लगेगा। अब यहाँ पे सप्लायर पीठालाल एज एन इंडिविजुअल, सप्लायर कौन है? पीठालाल है, ही इज रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल। एंड सेकेंडली रेसिपेंट कौन है? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। रेसिपेंट कौन है? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। टैक्स कौन पे करेगी? टैक्स कौन पे करेगी? रेसिपेंट पे करेगी। तो यहाँ पे पीठालाल की लायबिलिटी नहीं है, ये पीठालाल की लायबिलिटी नहीं है ये, तो यहाँ भी अपने हटा दिया। क्लियर? तो अभी तक एज आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितनी आई? 18,000 ही चाहिए। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना आया है? 18,000 सी जीएसटी एंड 18,000 एस जीएसटी आया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? करेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सप्लाईज ऑन व्हिच पीठालाल विल हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सप्लाईज, करेक्ट करेक्ट त्रिलोचनेश। मैं मिश्रा जी बोल दूं? त्रिलोचनेश, किसमें कंडीशन है? मतलब अब यहां पे आगे ये हमारा यहां तक खत्म हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने सर्विस ली है, किससे सर्विस ली है? अनरजिस्टर्ड जीटीए से फॉर बिजनेस एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीएल नंबर 1 अबाउ। मतलब कौन से प्रोविजन में? कौन सा प्रोविजन? मतलब ये वाला फ्यूनरल सर्विसेज के लिए मैंने जीटीए से सर्विस ली है
फ्यूनरल सर्विसेज से मैंने जीटीए से सर्विस ली, मतलब जीटीए टू पीठालाल फ्यूनरल सर्विसेज टू मिस्टर XYZ पर्सन। ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ये हमारा क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जम्प्टेड सप्लाई बोलते हैं। यस और नो? एक मिनट, I'll come back to this. क्या पॉइंट है, टेल मी ना व्हाट यू ट्राइंग टू से। सी सिक्योरिटी सर्विस क्या बोलता है, सप्लायर कैन बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लगेगा, नहीं है तो फिर एफसीएम लगेगा। अब ये कौन है, यूआरडी है, मैं क्लियर। और पीटरलाल कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर करो, जीटीए ने ये जो सर्विसेज दी है, इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई और नॉट। जीटीए ने ये जो सर्विसेज दी है, इज इट अ टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम जीटीए, एंड इफ जीटीए इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, देन पीटरलाल। शुभम, वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो जीटीए ने पीटरलाल को सर्विस, मैंने आपको जीटीए में बताया था, अगर बाय रोड की बात करेंगे तो डॉक्टर मोना 1500, 750, ये 3 एग्जम्प्टेड है, ये 3 एग्जम्प्टेड है, एंड अदर्स टैक्सेबल है। अगर रिसिपेंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। तो याद आ रहा है, ये मैंने फास्ट ट्रैक बैच में बहुत डेप्थ में समझाया था, ये मैंने फास्ट ट्रैक बैच में बहुत डेप्थ में समझाया था। यस और नो, प्लीज टेल मी। राइट, तो ये टैक्सेबल तो है, ये टैक्सेबल तो है, पर क्योंकि बंदा अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स कौन पे करेगा, पीटरलाल टैक्स पे करेगा। क्या रेट से, पीटरलाल टैक्स पे करेगा, क्या रेट से, 5%, 2.5% या 2.5%। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? यस, आरसीएम इन केस ऑफ जीटी, राइट। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, ये जो जीटीए का ये जो हमने 2500 का जो टैक्स पे किया है, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा क्या? एक मिनट, अपन 12% तब लगेगा जब जीटीए टैक्स पे करता तो 12% होता, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा तो नहीं बॉस, हम पढ़ेंगे आगे जाके। अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, और एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए अगर आपने कोई टैक्स पे किया इनपुट्स पे, तो उस टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उस टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीटीए टू पीठालाल XYZ को ये एग्जम्प्टेड सप्लाई है, तो इसका जो आपने टैक्स पे किया है, इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जम्प्टेड सप्लाई। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जम्प्टेड सप्लाई तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? Am I clear? Am I clear to you? टैक्सेबल है, टैक्स तो लग रहा है पर आईटीसी नहीं मिलेगा। शुभम, टैक्स लगना अलग बात है और आईटीसी मिलना अलग बात है। Am I clear? करेक्ट। दूसरा, लीगल सर्विसेज लिए उस अदर टैक्सेबल सप्लाईज होगा पर उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदर टैक्सेबल सप्लाई होगा पर उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। गेटिंग मी? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीगल सर्विस रिसीव्ड बाय मिसेस कानून एसोसिएट्स, a partnership firm।
पार्टनरशिप फॉर्म से मैंने एक लीगल सर्विस ली है 50,000 की, क्या इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने कल ही लीगल सर्विस पढ़ाया है, मैंने कल ही लीगल सर्विस पढ़ाया है। आंसर करो। नो तपन, प्रोविजन ध्यान में रखो, नहीं लगेगा, क्योंकि लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू exemption limit exempted, previous year's aggregate turnover exceeds exemption limit taxable। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, पिछले साल का टर्नओवर कितना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना है, 19,90,000। तो करंट ईयर में अगर मैं लीगल सर्विस लेती हूँ इट इज एग्जम्प्टेड। करंट ईयर में मैं लीगल सर्विस लेती हूँ इट इज एग्जम्प्टेड। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स मुझे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है, सिर्फ आपको बहुत सारी चीजें एक साथ याद रखनी पड़ती है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब यू कीप ऑन रिवाइजिंग टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। करेक्ट, 10, 20, 40। तो ये मेरा इस पे टैक्स ही नहीं लगा, यस इस पे टैक्स ही नहीं लगा, इस पे टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो मेरा आरसीएम की लायबिलिटी नील है। सॉरी, आरसीएम की लायबिलिटी नील, 2,500 है ना, आई एम सो सॉरी। आरसीएम की लायबिलिटी मेरी कितनी है, 2,500 की, जो मुझे कैश में पे करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? लिंकिंग करना पड़ता है। एम आई क्लियर? और एफसीएम की लायबिलिटी कितनी है मेरी, 18,000। आरसीएम इज ऑलवेज पेड इन कैश। अगर आपके पास आईटीसी होता तो भी आप आरसीएम की लायबिलिटी आईटीसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आप आईटीसी को कैश, आप आरसीएम को कैश में पे करके आईटीसी ले सकते हैं, पर यहाँ पे इसका आईटीसी अलाउड ही नहीं है। क्या ये लाइन समझा मैंने क्या बोला? RCM is always paid in cash. ITC is utilized only for outward supply. Tax to be paid on outward supply. ITC किसके लिए यूज होता है? अगर आप टैक्स पे कर रहे हो किसके लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप क्या करो, 2,500 कैश में पे कर दो। अगर ये जो सर्विसेज जो मेरे 2,500 है, वन मिनट गोपाल, ये जो 2,500 है, अगर ये एग्जाम्प्टेड, अगर ये फ्यूनरल सर्विसेज के लिए नहीं होता तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाता, पर यहाँ पे मेरे पास आईटीसी क्या है, 0 है। तो नेट जीएसटी कैश में, पूरा कैश में जाएगा, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, तो मेरे पास 18,000 भी कैश में पे करना है, 2,500 भी कैश में पे करना है, इन ऑल पूरा 20,500 मुझे कैश में पे करना है। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। या अगर अवेलेबल होता तो 18,000 से ऑफसेट होता। करेक्ट करेक्ट। अगर यहाँ पे जीटी के अलावा नहीं, अगर जीटी में भी अगर मैंने आगे एग्जाम्प्टेड सप्लाई नहीं दिया होता शुभम, तो भी मुझे उसका आईटीसी मिल जाता। करेक्ट गोपाल, एनी सब्जेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट to get 90+ marks is only possible when you are thorough with the subject, and thorough means you know in and out, as in you have done so much revision on subject कि आपको, आपने जैसे इंश्योरेंस एजेंट पढ़ा, आरसीएम क्लिक होना चाहिए, ये पढ़ा, लीगल सर्विसेज 1990 पढ़ा, एग्जाम्प्टेड क्लिक होना चाहिए। डीटी ज्यादा वास्ट है, अग्रीड, बट दोनों ही वास्ट, नो आईटी डीटी से ज्यादा आईटी कम वास्ट है, अग्रीड, बट आईडीटी डिफिकल्ट नहीं है। डीटी में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लगता होगा आपको, आईडीटी डिफिकल्ट नहीं है। आईडीटी जस्ट रिक्वायर लिंकिंग ऑफ चैप्टर्स। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। 40 मिनट्स हमने सिर्फ, मे बी 35 मिनट्स हमने सिर्फ एक क्वेश्चन में लगाया है।
35 मिनट्स हमने सिर्फ एक क्वेश्चन में लगाया है. गेट योर पॉइंट. कैन आई गो एट? बट आई होप, देखो इसमें हमारे कितने एग्जाम्पशंस वाले पॉइंट. इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, व्हाट माय ब्रदर यूज्ड टू डू. माय ब्रदर इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेरे भैया का कहना है, जैसे ही क्वेश्चन किया उसने, दिस आई गॉट टू नो अभी अभी में, ये पहले नहीं पता था क्योंकि मेरा स्टाइल उसका स्टाइल अलग है. उसका क्या कहना है, जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, हाथ तो हाथ जाके से आरसीएम के अपना सिक्योरिटी वाला पॉइंट आया, आरसीएम में अपना कमीशन एजेंट वाला पॉइंट आया, आरसीएम में अपना बिजनेस फैसिलिटेटर वाला पॉइंट आया, फिर अपना और क्या आया आरसीएम का, एग्जाम्पशन का पॉइंट्स आए. हाथों हाथ वो क्या करता था, जाके उस प्रोविजन को वापस पूरा रीड कर लेता था. हमें तो क्या होता था, क्वेश्चन में अगर सपोज 4 क्वेश्चन में सेम पॉइंट बार बार आ रहा है और आप उसको बार बार जाके रीड कर रहे हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में थिंग्स रजिस्टर हो जाते हैं. करेक्ट. ये तपन मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपको आईटीसी वाले चैप्टर में. आईटीसी वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कम मार्क्स आते हैं उसमें कम मार्क्स आते हैं. मार्क्स कम है मतलब हमारा पेपर टू द मार्क नहीं था. करेक्ट. Am I clear? कोई confusion? Can I go to the next question? Second question पे आ जाऊं. Okay. Again, before coming to second question, this is not a free batch, it's a paid batch. सिर्फ मैं weekends पे इसको YouTube live कर दूंगी साथ साथ simultaneously. This is going on my Teachment app. सिर्फ weekends पे मैं इसको YouTube live कर दूंगी. Rest it is only on Teachment. हाँ, my husband is also CA, I am also CA, my brother is also CA. तो क्या फैमिली में सिर्फ 3 लोग होते हैं क्या? देखो सिंपल बताऊंगी. आई एम इनटू प्रैक्टिस ऑल्सो. सी माय ब्रदर है सी, तो उसने तो मुझे पुश करके सी बना ही दिया. और अगर मैं सी हूँ तो माय हस्बैंड हैज टू बी सी, आई थिंक. चलो ओके, लेट्स गो एट. लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन. आज मैं बहुत नहीं पढ़ाऊंगी, संडे है, मुझे चैप्टर स्टार्ट करना था, मैंने स्टार्ट कर दिया. सो मेनी सीएस नहीं, ओनली 3 सीए. इफ आई कैन काउंट ऑन माई वन हैंड तो सो मैनी कैसे हो गए? अभी तो we are behind my brother's daughter's life. She's in 11th. कॉमर्स लिया उसने. टुडे मॉर्निंग ओनली आई टोल्ड हिम, भैया एंश्योर ये लड़की सीए ले ले. बिकॉज आई एम सीए ओनली बिकॉज ऑफ माई ब्रदर. तो कहीं ना कहीं मैटर्स अ लॉट कि आज उसने मुझे पुश किया तो मैं सीए बन गई, और मैं सीए बन गई तो लाइफ सेट हो गई. तो कोई पुश करने वाला होना चाहिए. टुडे ओनली यही हुआ. आज ही सुबह मैंने अपने भाई को बोला कि भैया जैसे मुझे धक्का दिया उसको भी धक्का दे देना. Yeah, motivation is in the family, no doubt about it. चलो, okay. Agreed. In fact, I should say मेरे पेरेंट्स का तो डबल सीए है. My brother सीए, I सीए, मेरे पेरेंट्स तो डबल सीए किए हुए हैं. चलो, okay. Next. कैन आई गो एट? अरे मन नहीं कर रहा है, पर ठीक है पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ. एन इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन जनवरी. ओके, एग्जीबिशन. एग्जीबिशन वर्ड से कुछ क्लिक होता है क्या? और कुछ? या धक्का मारो, मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, एग्जीबिशन से नो नो नो. प्लेस सप्लाई, ठीक. और कुछ? और कुछ? और कुछ? धक्का मारने के लिए ज्वाइन करो बैच. बच्चे मेरे जो ऐप में है उनको लोग धक्का ही मार रहे. सुबह शाम धक्का मारती हूँ मैं. आंसर करो.
एग्जीबिशन, एग्जीबिशन से दिमाग में आना चाहिए कि इट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। एग्जीबिशन में मैंने माल दिया है तो क्या सप्लाई हो गया? करेक्ट 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 शुभम, एग्जीबिशन से सेल होगा तब सप्लाई माना जाएगा। एग्जीबिशन में देना इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? ये दिमाग में रखना। An international trade exhibition is going to be held in USA in America, US in January, sorry. Ayat Niryat Export House, मतलब Export Import House, has participated in it. It intends to send 100 units of taxable goods manufactured by it to USA for display. 100 goods भेजे हैं for display to USA. This house is a view that activity, इनका क्या view है? Activity of sending the goods out of India for exhibition is zero dated supply. आंसर करो, पहले आगे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे। मुझे बताओ, ये आयात निर्यात हाउस का कहना है एग्जीबिशन में भेजना इज कॉल्ड एज जीरो डेटेड सप्लाई। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नहीं शुभम, जीरो डेटेड सप्लाई कब होता है? जब सप्लाई हो तो जीरो डेटेड बोलूंगा ना। जब वो सप्लाई ही नहीं है तो जीरो रेटेड की बात कहां से आ जाती है? सप्लाई होगा तो टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्टेड होगा, कंपोजिट होगा, मिक्स होगा, जीरो रेटेड होगा। पर अभी तो मैंने सिर्फ डिस्प्ले के लिए भेजा है। However, tax advisor does not agree with this view. Examine whether the view of is correct. पहले इतना पढ़ते हैं, इतना समझते, इतना आंसर के लिए जाते हैं। No, the view is not the view of area that actively sending the goods out of India for exhibition zero rate supply is not correct. Why not correct? As per section 7 of CGST Act, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई कब होता है? When twin test हो, पहली बात तो कंसेशन होना चाहिए and should be in the course or furtherance of business. Consideration का exception is only schedule 1. Am I clear? सेक्शन 16 क्या बोलता है? डिफाइन सेक्शन 16 ऑफ IGST Act defines zero rate supply goods export और SEZ को। Thus only supplies of goods, मतलब सप्लाई ओनली, जो सप्लाई है which are either export or are supplied to SEZ will be called as zero rate supply. Am I clear? Am I clear? जो सप्लाई ही नहीं है उसको मैं जीरो रेट सप्लाई करके क्या करूंगी? जो सप्लाई ही नहीं है उसको जीरो रेट सप्लाई बोल के क्या करूं? क्लियर? आगे पढ़ते हैं। Assuming आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस could not sell any goods at the exhibition and bring back the entire 100 units in the month of February, second in the month of August. Discuss requirement to issue invoice if and in each of the following independent case. आंसर करो। इंडिपेंडेंट केस, अगर जनवरी में भेजे थे 100 के 100 वापस आ गए फरवरी मंथ में, क्या करूं मैं इस केस में? आंसर करो। और आपको इंडिपेंडेंट केसेस में इनवॉइस के बारे में बताना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट केसेस में इनवॉइस के बारे में बताना पड़ेगा। बस इनका कहना है अगर मैंने गुड्स भेजे हैं ऑन सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस, तो सप्लाई कब माना जाता है? डेट ऑफ, क्या बोलना चाहिए, क्या वर्ड आएगा? और एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। डेट ऑफ क्या बोले जाते हैं? डेट ऑफ सेल नहीं, डेट ऑफ सप्लाई। मतलब या तो उसने हाँ कर दिया रिसिपेंट ने, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ अप्रूवल्स, विच एवर इज अर्लियर। मतलब या तो सामने ने हाँ कर दिया, या जिस दिन आपने रिमूव किया था उसके 6 months हो गए और वहां से हाँ का भी जवाब नहीं आया तो अग्रीड सप्लाई हो गया। Am I clear? बट यहाँ पे तो फरवरी में वापस आ गया, तो ये सप्लाई था क्या नहीं था? तो इसमें आप क्या डॉक्यूमेंट भेजोगे?
क्या आप टैक्स इनवॉइस भेजोगे यहाँ पे? नहीं, तो क्या भेजोगे? डिलीवरी चालान। जब मेरे यहाँ से माल निकलता है, जब मेरे यहाँ से माल निकलता है और माल अभी भी मेरा ही है, तो मैं इनवॉइस नहीं भेज सकती, मैं डिलीवरी चालान भेजूंगी। देखो, अगर जब गुड्स के केस में या तो सप्लाई होगा या रिमूवल होगा। रिमूवल का मतलब अभी भी माल मेरा है, इस केस में हम लोग डिलीवरी चालान इशू करते हैं। और इस केस में अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। करेक्ट। गेटिंग मी? तो मुझे फेब्रुवरी वाले केस में सिर्फ डिलीवरी चार्ज इशू करना पड़ेगा। अगस्त वाले केस में क्या होगा, जब जनवरी में मैंने गुड्स रिमूव किया था तब तो मैंने डिलीवरी चार्ज इशू किया होगा, पर जनवरी अपडेट नहीं दिए तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस दिन 6 मंथ्स हो जाएंगे उस दिन मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो पहले इतना आंसर पढ़ ले, फिर वो इतना आंसर पढ़ ले। Correct. In the view of above provision, as activity of sending the goods, ये बहुत important है, circular है। Activity sending the goods out of India for exhibition or consignment basis for export promotion, except when such activity satisfy test of Schedule 1, do not constitute supply and do not fall under Section 7, as there is no concession at that point of time. Clear? यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या बोलता है? इन केस ऑफ गुड्स बीइंग सेंट ऑन और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस, इनवॉइस विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। एम आई क्लियर? जब गुड्स निकाले तब आपको क्या इशू करना पड़ेगा? सर, डिलीवरी चालान। अगर पूरे की पूरे गुड्स आपके बिके नहीं और वापस आ गए 6 मंथ्स में, तो पहले केस में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे केस में अगस्त में आफ्टर 6 मंथ्स एंटायर 100 यूनिट्स के लिए हमको क्या इशू करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हमें सेक्शन 12 के हिसाब से इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। एम आई वेरी क्लियर? करेक्ट। नहीं शुभम, इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। वुड योर आंसर बी डिफरेंट? समझा कि नहीं समझा? यहां तक समझा कि नहीं समझा? Would your answer be different if Ayat Nirit House sells an aggregate of 65 units of the taxable goods in US exhibition on different dates in January and remaining 35 units are brought back? 65 यूनिट्स जनवरी में बिक गए, 35 यूनिट्स जनवरी में वापस आ गए, ठीक है। द टैक्स एडवाइजर एडवाइजेस आयात निर्यात that the export of 65 units qualify as zero supply and should be apply for refund of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका क्या कहना है, मैंने आज 100 यूनिट भेजे थे एग्जीबिशन में जनवरी मंथ में, 65 बिक गए, 35 वापस आ गए, ठीक है। अब उसका कहना है हाउस का कि 65 जो हमने भेजे वो जीरो डेट सप्लाई है, और जीरो डेट सप्लाई केस में जो भी मेरा अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका मुझे रिफंड मिलना चाहिए। आई होप यू नो दिस, कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई क्यों कहा जाता है, एक्सपोर्ट्स को जीरो रेट सप्लाई क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता है कि रेट 0% है, इसलिए नहीं कहा जाता रेट 0% है। क्या होता है, अगर सपोज A to B and B to एक्सपोर्ट, अगर मैंने एक्सपोर्ट के टाइम पे
टैक्स पे किया है IGST, तो मुझे इसका पूरा रिफंड मिल जाता है। तो मतलब मैंने पे किया और मुझे वापस मिल गया, तो जीरो रेटेड हो गया। या दूसरा, अगर मैंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर दिया तो नो टैक्स, नो टैक्स, महाराष्ट्र पुणे, नो टैक्स। तो उस केस में फिर यहां पे जो ITC मेरा पड़ा है विच इज अनयूटिलाइज, मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा। Am I clear? Am I clear? Am I clear? दोनों ऑप्शंस हैं। अब इसका कहना है कि इसको 65 यूनिट को जीरो रेट सप्लाई मानो और जो मेरा उसका अनयूटिलाइज ITC मुझे उसका रिफंड चाहिए। देखो, however, if an aggregate of 65 units of the goods are sold in USA exhibition by Ayat Niryat House on different dates in January, good, in January, that is within the stipulated time 6 months, a tax invoice would be required to be issued for this unit at the time of each supply in accordance with section 12. यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। Now, when the goods are sold, when the goods are sold in exhibition, actual supply from the exporter in India to the importer located out abroad takes place and supply qualifies as export. Export of goods is a zero rated supply as per section 16. Remaining 35 वापस आ गए, वहां तो कोई इशू नहीं है। Now, further ये important point है। Further, the tax advisor's advice is technically correct. Since the activity of sending or taking specified goods out of India is not a zero rate supply, आपको तब letter of undertaking की जरूरत नहीं थी। However, the sender can prefer refund claim even when specified goods were sent or taken out of India without LUT if is otherwise eligible for refund. समझा? वापस समझाती हूँ। क्वेश्चन वापस पढ़ो, लास्ट 2 लाइन्स वापस पढ़ो। उसने क्या बोला आयात निर्यात हाउस ने कि मैंने 65 यूनिट्स बिके हैं, 35 यूनिट्स वापस आ गए। टैक्स एडवाइजर ऑफ ए एडवाइसेस कि जो 65 यूनिट्स हैं वो जीरो रेट सप्लाई है, तो हम रिफंड क्लेम कर लेते हैं ऑफ अनयूटिलाइज ITC। तो ये अनयूटिलाइज ITC का रिफंड कब मिलता है हमें? जब मैं एक्सपोर्ट करते वक्त लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करती हूं। पहले ये समझो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके अगर मैं एक्सपोर्ट करती, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके अगर मैं एक्सपोर्ट करती तो मुझे फिर उसका अनयूटिलाइज ITC का रिफंड मिलना चाहिए था। यस और नो? यस। अब क्या कहना है? वापस समझा रही हूं। If an aggregate 65 units are sold in exhibition on different dates, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पैरा है। क्या इंपॉर्टेंट पैरा है? When the goods are sold in exhibition, actual supply from the exporter in India to importer located outside India takes place and abroad, and the supply quality, इसको एक्सपोर्ट माना जाता है। एक्सपोर्ट माना जाता है तो जीरो रेट सप्लाई हो गया। मतलब तो अब इसका क्या कहना है? फर्दर टैक्स एडवाइस टेक्निकली करेक्ट एक्टिविटी, क्योंकि सिंस एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग और टेकिंग स्पेसिफाइड गुड्स आउट ऑफ इंडिया, जब मैं ले गई थी तब तो वो जीरो रेट सप्लाई नहीं था, तो तब तो मुझे बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं थी, हाँ या ना? जब मैं ले गई थी तब तो वो अज्यूम करेक्ट, अज्यूम वाली बात ही नहीं है। जब मैंने ले गई थी क्या वो सप्लाई था? नहीं था, तो मैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन क्यों करती? However, the sender can prefer refund claim when specified goods were sent or taken outside India without letter of undertaking if is otherwise eligible for refund
अंडर सेक्शन 54 इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ 65 यूनिट्स। मतलब ये अपन लास्ट पॉइंट ही समझा रही हूँ। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, क्या 65 यूनिट्स जो मैंने जब भेजी थी तब तो सप्लाई नहीं थी, वहां जाके बिक गई, क्या वो सप्लाई थी? यस। कौन सी सप्लाई थी? जीरो रेटेड सप्लाई थी। यस और नो? यस और नो? राइट। तो अब उसका कहना है कि आप अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड ले लो। अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड कब मिलता है? जब मैं सप्लाई करते हुए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करती, जब मैं सप्लाई करते हुए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करती, जो हुआ नहीं है। तो इनका कहना है कि सेंडर रिफंड क्लेम कर सकता है even when the specified goods were sent without letter of undertaking if he is otherwise eligible for refund under section 54। जो हम 54 जो हमारा रिफंड का सेक्शन है, अगर अदरवाइज आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो रिफंड क्लेम कर सकते हो, पर आप अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड एज सच क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको सप्लाई करते वक्त लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके देना था। एम आई क्लियर? क्लियर? Am I clear? Am I clear till here? Please confirm. समझा? शुभम, तपन, दीपक? करेक्ट। 35 तो वापस आ गए ना शुभम? Okay. Clear? So today I am taking only till you. This Sunday evening. Let us enjoy. Okay. Before. Okay.